اس کو رمضان سے ملا دیتے. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب علیہ السلام اتنے روزے رکھتے. اچھا یہ کیوں رکھتے تھے؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ ذرا یہ بھی سن لیجئے کہ نبی پاک علیہ السلام ہماری تعلیم کے لیے کیا شاندار جملہ ارشاد فرماتا. وہ دیکھتا ہوں کہ آپ باقی تمام مہینوں سے زیادہ شعبان میں روزوں کی کثرت فرماتے ہیں. یقیناً اس میں رمضان کے روزے تو الگ ہیں، باقی مہینوں کی بات. مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، اس سے غفلت میں ہے، جس میں اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتا ہوں. جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں اس وقت میں روزے سے ہوں. آپ ذرا سوچئے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کے حبیب علیہ السلام جن کے صدقے میری اور آپ کی مغفرت ہونی ہے. آپ پڑھتے ہیں نا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہان کو دین ملا. آقا کے صدقے تو ایمان ملا ہے، مگر یہ ہماری تعلیم ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے سے. اب یہ سکھا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو اعمال پیش ہونے کی رات ہے. اس رات بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں اسلامی بھائیوں سے، ہم سب کو پتا ہے ہمارے اعمال میں کیا ہے، کتنی خطائیں ہیں، کتنی بے شرمیاں ہیں، کتنے جرم ہیں. کیا ہمیں کچھ آج شرم آ رہی ہے؟ کیا یہ فیلنگز ہیں کہ یا اللہ کچھ بھی نہیں ہے؟ آج ہمارے اعمال تیرے دربار میں آ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں اس میں ہم نے کالے کر دیے اپنے نامہ اعمال. کچھ نہیں مالک تیری بارگاہ میں پیش کرنے کو. اور میرے کریم، ہم پہلے سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم امتحان میں فیل ہیں. We are lost یا اللہ عز و جل. مگر مالک آج مغفرت کی رات ہے، آج رحمت کی رات ہے. اگر تیری رحمت صرف اچھوں پر برستی رہی تو ہم کدھر جائیں گے؟ آج گڑ گڑانا ہے میرے میٹھے اسلامی بھائی. آج کی رات وہ رات ہے، روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ آج آسمان دنیا سے یہ ندا دی جاتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کی جائے. ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کو اس کی مغفرت کر دی جائے. ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے. آج تو اعلان ہو رہا ہے نا، لیکن کیا ہم اس کیفیت میں ہیں؟ کیا ہم اللہ کی بارگاہ میں اس طرح گڑ گڑا رہے ہیں کہ مولا بس آج معاف کر دیجیے؟ ورنہ حالت تو یہ ہے، وہ پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، جے میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پل، کچھ ہے ہی نہیں، ایوری تھنگ لاسٹ. ہم نے ساری زندگی بیکار کاموں میں تو گزاری، نیکیاں کی تو اس میں اخلاص نہیں، ریاکاری. جے میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، پر جے ویکھا میں رحمت رب دی بلے بلے بلے. اس رات کا احادیث میں کس انداز سے ذکر ہوا؟ The mother of believer سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا stated, I heard that holy prophet sallallahu alaihi wasallam saying, Allah azza wa jalla opens the portal of mercy in 4 nights. بی بی عائشہ کہتی ہے میں نے نبی پاک علیہ السلام سے سنا ہے کہ اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے، رحمتوں کی جو برسات ہے وہ ان 4 راتوں میں برساتا ہے. مضمون حدیث ہے نمبر 1 the night of عید الاضحیٰ، وہ رات جو عید الاضحیٰ سے پہلے آتی ہے. نمبر 2 the night of عید الفطر، جس کو چاند رات ہم کہتے ہیں. رمضان کے بعد جو رات آتی ہے صبح عید ہوتی ہے. یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ وہ رات بھی تو کچھ دنوں میں آئے گی، مگر اس رات کیا ہوتا ہے؟ طوفان بدتمیزی ہوتا ہے. یہ رحمت کی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے. نمبر 3 بی بی عائشہ said that 15th night of Shaban, as in this night the names of those destined to die this year. 15 شعبان کی رات، اور اس رات اس سال مرنے والوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں. Provision of sustenance of people and the names of those who shall perform Hajj that year are inscribed. آپ فرماتی کہ نبی پاک نے فرمایا اس رات اس سال میں کس کو کتنا رزق دیا جائے گا یہ بھی شب برات لکھا جاتا ہے، اور اس سال کون کون حج کرے گا یہ نام بھی شب برات لکھے جاتے ہیں. اتنی نازک رات ہے. The 4th night, night of Arafah, the night between the 8th and 9th of Dhul Hijjah until the azan of Fajr. 8 اور 9 ذو الحجہ کی درمیان کی رات، یہ 4تھی رات ہے جو رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور یہ عرفہ کی رات کہلاتی ہے. Dear Islamic brothers, how critical the 15th night of Shaban al-Mu'azzam is. کتنی نازک رات ہے. No one knows what will be predestined for him. Sometimes a person is heedlessly busy in these activities while mishaps are destined for him. لوگ غفلت میں ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے بارے میں کیا لکھا جا رہا ہے. ذرا غور کیجئے. It is stated in غنیۃ الطالبین، یہ وہ کتاب ہے جو سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے. غوث پاک تحریر فرماتے ہیں The shrouds of many people are washed and prepared, but they are busy wandering around in the markets. غوث پاک کہتے ہیں کچھ کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں مگر اس کو پہننے والے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں There are many people whose graves have been dug and ready,
but they are busy enjoying themselves. फरमाते कुछ लोगों की कब्र के घड़े खुदे तैयार होते हैं मगर वो घूम रहे होते हैं, वो बाजार में मजाक मस्ती और जनाब गुनाहों में मसरूफ होते हैं। एक बात मैं आपको बस इस जुमले के तहत बताऊं, पहले बात पूरी कर लूं फिर मैं आपको प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा। आप फरमाते हैं नंबर ऑफ पीपल आर बिजी लाफिंग ऑल्दो द फाइनल मोमेंट ऑफ देयर डेथ इज अप्रोचिंग। कुछ लोग हंसी मजाक कर रहे होते हैं मगर मौत का वक्त करीब आ गया होता है। फरमाते हैं द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैनी हाउसेस इज अबाउट टू कंप्लीट but at the same time the lifetime of the owners is also about to complete. फरमाते कुछ घर बिल्कुल बनकर तैयार हो गए होते हैं मगर मकीन जो इस घर में रहने के लिए आना चाहता है उसका आखिरी वक्त भी आ गया, उसकी कब्र भी तैयार हुई। अब जरा इसको प्रैक्टिकली समझिए। आप जब कब्रिस्तान जाते हैं कुछ कब्रें तैयार मिलती है ना, सही बात बताऊं प्रैक्टिकल, जो कब्रें खुदी हुई है ना, जिनकी भी खुदी हुई है वो जिंदा है इस वक्त। हाँ, थोड़ी देर बाद मरना है उन्होंने और फिर इस कब्र में आ जाना है। कफन की दुकान पर जब कभी जाए ना तो वह कफन वो तय कर रहा होता है, प्लास्टिक में डाल रहा होता है। एक्चुअली ये जिसका कफन तय कर रहा है ना वो उस वक्त जिंदा है, थोड़ी देर बाद उसको मरना है। ये कफन खरीदने कोई आएगा दुकान से, इसको कफन पहनाया जाएगा। और जो कब्र थोड़ी देर पहले गोरकन ने या एक दिन पहले खोदी थी ये उसके लिए खोदी थी जो जिंदा है। तो मुझे और आपको पता नहीं है कि हमारी कब्र खुदी हुई कहीं रेडी तो नहीं है, कहीं कफन तय तो नहीं हो रहा। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है बल्कि खबर नहीं। My dear Islamic brothers, this is the very crucial night. बहुत ज्यादा नाजुक रात है। इस रात कितनी मगफिरत होगी, कितने लोग बख्शे जाएंगे। सैयदना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा has reported that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Jibreel alayhi salam came to me and said, this is the 15th night of Shaban. Allah Azza wa Jal frees as many people from the hell as the number of the hairs on the goats of the tribe of Kalb. प्यारे आका फरमाते जिब्रील अमीन मेरे पास आए और आकर अर्ज की कि हुजूर आज 15 शाबान की रात है। अल्लाह ताला जो इतने लोगों को जहन्नम से आजाद फरमाएगा जितने कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद है। What is the meaning of that? मैं और आप तो अपने सर के बाल काउंट नहीं कर सकते, एक गोट के, हम एक बकरी के बाल काउंट नहीं कर सकते। कबीला बनी कल तो सबसे ज्यादा बकरियां पाला करता था। It means millions, billions लोग आज की रात बख्शे जाएंगे। मगर but he Azza wa Jal does not cast merciful sight at an infidel. इस रात भी कुछ लोग ऐसे जिन पर अल्लाह ताला नजर रहमत नहीं फरमाएगा। Infidel मुशरिक पर नजर रहमत नहीं फरमाएगा। Malicious person, one who cuts off family ties, the one who dangles his clothes, a person who disobeys his parents, and a person who is habitual of drinking wine. हदीस का मजमून क्या बना कि शिर्क करने वाले इस रात को नहीं बख्शे जाएंगे। फिर फरमाया जो अहादीस का मजमुआ है, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप का नाफरमान, disobeyed of parents, नहीं बख्शा जाएगा। शराब पीने वाला, habitual of drinking wine, शराब का आदी, नहीं बख्शा जाएगा। खुदारा इन चीजों से तौबा करो। अब वाइन शराब अब तो पार्टीज में कोल्ड ड्रिंक की तरह पी जा रही है, इसको कोई जुर्म समझता ही नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड ये कितना बड़ा सिन है, ये कितना बड़ा गुनाह है कि जिस रात करोड़ों अरबों लोग बख्शे जा रहे हैं शराब ही नहीं बख्शा जा रहा। तौबा कर लीजिए, छोड़ दीजिए इन बुरी आदतों को, ड्रग्स को छोड़ दीजिए प्लीज। माय डियर व्यूअर्स, माय यंगस्टर ब्रदर्स, वेस्टर्न वर्ल्ड में बदकिस्मती से जब सुनते हैं तो दिल जलता है कि मुसलमान कहलाने वाले बड़ी तादाद में ड्रग्स का यूजेज कर रहे हैं। किधर जाएंगे हम? इन ड्रग्स को, इस नशे की आदत को खुदा ना छोड़ दीजिए। वो रहीम, वो करीम जो शबे बारात करोड़ों को बख्श रहा है, शराबी नहीं बख्शा जाएगा। प्लीज तौबा कर लीजिए। मुसलमान का क्या काम शराब से, उसका क्या काम नशे से। आप एक बार और याद रखिए, जो नशा करने वाले हैं ना, जो ड्रग्स यूज करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड जिस स्टेट में, जिस आलम में रिवायतों में मजमून मिलता है किसी का इंतकाल होगा ना, उसी आलम में क़यामत के दिन उठाया जाएगा। कभी सोचा आपने अगर नशा किया, ड्रग्स यूज की, वाइन पीने वाले जो नशे में घूमते रहते हैं, झूमते रहते हैं, अगर इसी हालत में इंतकाल हो गया तो आज रात तो ये लिखा जाएगा ना कि अगले इस साल में किसका इंतकाल होना है, क्या पता हमारा वक्त करीब आ गया हो। और अगर नशे में मर गए तो क्या जवाब देंगे? अल्लाह की बारगाह में नशे में पेश होंगे? नहीं मेरे मीठे इस्लाम, हम तो चाहते हैं ना कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। हमारी जबान पर तो कलमा हो, दुरूद हो, काश तिलावत करते करते मौत आए, दुरूद पढ़ते पढ़ते। ये कैसे होगा जब आप इन चीजों के आदी बनेंगे ना? जो शराब का आदी हो तो उसका बहुत ज्यादा चांस है कि वो नशे में मर जाएगा। तो खुदारा से आज रात तौबा कर ले, अल्लाह बड़ा करीम, अभी रात कंप्लीट नहीं हुई है, सुबह तक ये रहमत जारी है। माफी मांग लीजिए, सजदे में सर झुकाइए। माँ बाप को अगर सताया है, if your parents are not happy with you,
प्लीज उनके पास जाइए और माफी उनसे उनके पैर पकड़ लीजिए। माँ बाप राजी तो रब राजी, माँ बाप नाराज तो रब नाराज, उनको नाराज ना करो। और इस हदीस से क्या सीखने को मिला कि जो कट ऑफ टाइज करते हैं, जो अपनी फैमिली के साथ रिश्तेदारी कता कर देते हैं, मुनकता कर देते हैं, हम इनके पास नहीं जाएंगे, हम इनके घर नहीं जाएंगे, हम फला रिश्तेदार के पास नहीं जाएंगे, ना करो ऐसा। ये रिश्तेदारियां काटना अल्लाह को कितना नापसंदीदा है कि शबे बारात भी वो लोग मोबाइल पर अपने इंटरनेट डिवाइसेस पर हम क्या देख रहे होते हैं। पहले हराम बंदा देखता है और फिर ये जो हमने दोस्तियों के नाम पर जो गर्ल्स एंड बॉयज की दोस्तियां चल रही होती है कि नहीं जनाब हम ओनली फ्रेंड्स, इट्स नॉट अलाउड इन इस्लाम। ये दोस्तियां ही फिर हराम की तरफ लेकर जाती हैं। जो इस्लाम ने हमें जिन चीजों से मना किया, मुसलमान है, हमें जन्नत में जाना है ना, अल्लाह को राजी करना है। अगर रबी नाराज हो गया तो बनेगा क्या? आज की रात अगर एडल्ट्री करने वाला नहीं बख्शा गया फिर उसको सोचिए तो उसका बनेगा क्या? प्लीज मेक रिपेंटेंस, गिड़गिड़ाइए अपने रब की बारगाह में। और देखिए तौबा क्या है। तौबा के वैसे तो कई डिटेल उलमा ने बताई, मगर इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं ना, अन-नदमुत तौबा, शर्मिंदगी तौबा है। पहले तो अपने अंदर गिल्ट फील कीजिए कि या अल्लाह मैं बहुत बुरा हूं, बहुत गलतियां हैं, मालिक माफ कर दे। और फिर आइंदा ना करने का पक्का इरादा, अल्लाह अब नहीं करूंगा, मैं तुझसे वादा करना, आई प्रॉमिस इन योर कोर्ट या अल्लाह अज़्ज़ व जल, गिव प्लीज एक्सेप्ट माय रिपेंटेंस, मेरी तौबा कबूल करने वाली, अब नहीं करूंगा। ये पक्की तौबा इंशाअल्लाह, क्या पता अल्लाह करीम की आज रहमत बरस जाए और वो हमें आज माफ कर दे। व्हाट अ ब्यूटीफुल इंसिडेंट, क्या खूबसूरत वाकया जरा ईमान की जो चाशनी के साथ सुनिए। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि तआला अलैह was once busy in worship in the 15th night of शाबान। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अमीरुल मोमिनीन थे जिस वक्त 15 शाबान की रात इबादत में मसरूफ है। When he raised his head, he found a green slip of paper whose refulgence was extending up to the sky. जब वो अपने सर उठाते हैं ना तो अपने साथ एक ग्रीन कलर का पेपर देखते हैं जिसका नूर आसमानों तक जा रहा होता है। It was bearing the words, उसपे लिखा हुआ क्या है? हादिही बराअतुम मिनन नारी मिनल मलिकिल अजीज लिअब्दिही उमर अब्दुल अजीज, meaning this is an order of absolution from the hellfire sent from Allah Azza wa Jal, the omnipotent, for his servant Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi ta'ala। ये अल्लाह की तरफ से अपने बंदे उमर बिन अब्दुल अजीज के लिए जहन्नम की आग से आजादी का परवाना है। हाय हाय हाय, जिससे रब राजी हो उनको ऐसे इनामात अता होते हैं। तो मेरे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, जरा सोचिए कि हमने भी तो अल्लाह से मग़फ़िरत लेनी है ना, हमने भी तो अपने रब को राजी करना है। हमारे बुजुर्गान दीन हमें समझाते हैं कि ये दुनिया जी लगाने की नहीं है। इट्स नॉट टू लॉन्ग, वी हैव टू गो, वी हैव टू डाई। हम सबको इस दुनिया से जाना है। जरा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का फरमान सुने। वो क्या कहते हैं? द लीडर ऑफ द बिलीवर्स सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु वुड से ड्यूरिंग द सरमन, उनका एक अंदाज होता था, वो खुतबे के दौरान क्या कहते हैं? वेयर आर दोज विद ब्यूटीफुल फेसेस, कहां है खूबसूरत चेहरों वाले? वेयर आर दोज हु वर एरोगेंट अबाउट देयर यूथ, कहां है वो लोग जो अपनी जवानी पर बड़ा नाज करते थे? वेयर हैव दोज किंग्स gone who had magnificent cities constructed and had them fortified with giant forts? कहते वो बादशाह किधर हैं जिन्होंने बड़े बड़े शहर बनाए और बड़े बड़े किले बनाए, उनकी शान और शौकत हुआ करती थी। Where are those who were victorious on the battlefield? किधर है वो सिपह सालार और वो जंगजू जो मैदान जंग में जीता करते थे? Without any doubt, time has ruined them and they are now lying in the darkness of the grave. बगैर किसी शक के वक्त ने उन्हें खत्म कर दिया, पामाल कर दिया और आज वो अपनी अंधेरी कब्र में है। हरी अप, जल्दी करो, एक्सीड इन परफॉर्मिंग गुड डीड्स एंड सीक सल्वेशन। सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते जल्दी करो और अल्लाह को राजी करने वाले काम कर लो और नजात हासिल कर लो। काश ये बातें हमारे दिल में घर कर जाए। बंदा कहता है यार अभी तो एक घर है, दो बनाने हैं, अभी तो छोटा है बड़ा बनाना है, अभी तो यूरोप में है पाकिस्तान में भी घर बनाना है, अभी तो छोटा बिजनेस है बड़ा करना है, 5 इयर्स बाद ये टारगेट है, 10 इयर्स बाद ये टारगेट है, 20 इयर्स बाद ये टारगेट है, इतने पासपोर्ट लेने हैं, ये जनाब वीजे लेने हैं, मगर पता भी नहीं चलता और बंदा कैसे दुनिया से चला जाता है। आइए मैं आपको एक और वाकया सुनाऊं। सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज जिनको बराअत का परवाना मिलता है, ये अमीरुल मोमिनीन है, किस कदर नेक है। एक बार एक जनाजे के साथ कब्रिस्तान तशरीफ ले गए, हम भी